All right. Assalamu alaikum, students. अगेन आई कंफर्म कि मेरी आवाज़ भी आपको सही आ रही है और स्लाइड्स भी नज़र आ रहे हैं. इज़ दैट द केस? जी सर, आवाज़ भी आ रही है और स्लाइड्स भी नज़र आ रही Okay. So, as we decided, or last time, that the common material of Python learning we had finished last week. And now from this week onward, we will have specific material for each course separately. So our classes are now Monday and Wednesday for the IoT, and Tuesday and Thursday are for the deep learning. We have the common grounds now prepared, and now we can proceed on the individual sites. By combining, we benefited that we could cover Python at the double rate by using both the classes because the students were common. So we made that benefit and save time on that. Okay. So like IoT's thing, we start our deep learning overall. And okay. All right. Here is a brief outline of our this deep learning course. Uh, there are, when we go to the specific usage of things like TensorFlow, etc. So we will select and refer those books at that time. But for most of the time, the overall course textbook is as given here. It's an excellent book by Goodfellow from this MIT Press, and very nicely presented, integrated material into it. So I will put this book soft copy on the our Google Classroom. Uh, if you want to buy from the market, etc., you can do that. But you will have this as a soft copy from us available on the Google Classroom. Uh, while all the details, we will talk about it in the next few slides by the contents. Uh, but basically, we will be benefiting from our all the things you have been learning, integrating into this course. You will be able to benefit from the some mathematical applications as usual. We did in the last two courses because the deep learning also will need the mathematics thing. So the initial part of this will cover the essential mathematics. It will be mostly the one which you should know from your previous background, as I keep saying, college algebra, plus if you have done any mathematical courses. And then we will come to the basic algorithms of machine learning, and we will evolve that machine learning to differentiate, and we'll get to the deep learning, uh, how deep learning differentiates from the machine learning. And then we will go for these various ways of describing or solving our practical problems or applications, especially in the deep learning. The major uh, benefit comes for the image processing applications, like the convolution neural network are the major workhorse of the deep learning world. If there is one thing we learn in this domain is the convolutional neural network application, which will be used in many places, including
things like this, uh, self-driving car, etc., that kind of things. So this is the overall thing. And of course, when we talk of the deep learning, its implementation means learning of neural networks, benefiting from our knowledge of parallel processing concepts, applying those to mathematically. And of course, when we do these things, you will have to look after the optimization and regularization things related with it. So that will be our overall things about it. Now, getting to the specific things which we will cover are, as I said, first, when we go to the mathematics, we will do essential mathematics, which will using it when we write our algorithms, and we refer to these. In fact, in addition to learning these essential mathematical concepts, you will also learn about the terminology which you will follow when we use like Keras or TensorFlow, and same definition, same terminology will be utilized there. Okay? And but more important thing is you will be knowing at the back of it what is happening from the mathematical background. Sometimes some people who are not, who don't have enough mathematical background, they jump to directly implementing them and knowing nothing what is at the back of it. But you being scientist and engineer, like all good universities which we, when they teach people, they do build the essential background maths. In fact, we are not building. I am expecting that you know this from the college algebra, most of it. And if not, some of your mathematical courses which you do here in our university. So both of them merge should be already there and enough background. And we'll go slightly like reviewing those things and introducing those terminology which we'll be using later. As we did when we covered the parallel processing and CNS. So for CNS, like when we did symmetric, we did the maths for that. When we did asymmetric, we did the maths for that. And similar thing when we did machine learning. For parallel processing, we define those matrices and its usage, and some of it will appear here again. And those people who have done that course will should be more comfortable in seeing those things. As you can see in our assignments, also we used the same concepts, and they were relevant here. So you will see them reappearing and benefiting from your previous understanding of the mathematical things. Okay. Now, so first part of will be the essential math for the machine learning basics, and we'll leave out which is not relevant here. You don't consider, we are not covering, trying to cover whole linear algebra and probability and this. We are trying to cover those aspects of these areas which are directly related to our machine learning and deep learning stuff. So in the maths, first, most important, which you have to learn this linear algebra for machine learning. Then there is another important thing which will keep appearing throughout, probability and information theory. So we learn basic and essentials about it. Then there is a numerical computation and gradient based optimization. When you want to find the, reduce the error, and you deal with the slopes and you get to those minima, maxima point, etc. So you need that. And when you do it in multiple variables, so you need this gradient based optimization. So we learn this. This, these three topics are our essentials of maths, which we need to learn for proceeding further. Okay. So then we will look at this machine learning basics. Of course, starting from the definition, looking at capacity matters, underfitting, overfitting, looking at hyperparameters for validation, and estimators, bias and variance, maximum likelihood estimation. Now you will see this maximum likelihood estimation will directly come from here. ये जो हमने यहाँ पे probability में सीखा होगा, ठीक?
और कुछ थोड़ा सा इधर से आएगा. And Bayesian statistics, supervised learning algorithms, unsupervised learning algorithms, stochastic gradient descent. Yeah, this is that thing which I was talking about. Okay, opt to find the minimum error points. You travel on the curves and get to maxima minima place by using this, which you learned here, gradient based optimization, and using it here in machine learning. Then building a machine learning algorithm and the challenges and motivating. Now machine learning, the basics come from here, but then we find that machine learning has a serious challenges in terms of defining of the features. You need the whole field of uh, feature engineering in the first part of this machine learning. So that will take us that how about that feature learning, the whole field can also be done in some way by the automated way of learning. And that is which will bring us to this. What are the challenges? And then leading them to deep learning. Deep learning is the solution for that. So we will ease out that portion by getting to the deep learning. Of course, this will be we'll be using Python libraries, TensorFlow, etc. to implement them. Okay. So from machine learning, then we said we move to the deep learning. In fact, remain connected from there. Inference things will stay, most of them, but the feature learning, in fact, training and learning, both concepts will stay, but machine learning prerequisite was that you have to engineer the features. Now, deep learning will do that also automatically. So that's why we then learn the deep learning. We overview the basic concepts of deep learning. Then we look at the deep networks for the deep learning, the neural networks, etc., which will place. So we look at the deep learning networks and what are the modern practices in them. Okay? We will start with the deep feed forward networks. First is you have something and you are moving layer by layer in the neural networks in the forward direction to get to the output results to define what the thing is, classify or binary selection or regression. So you will move in the neural network in the forward direction. But then when you move, there is the error in terms of you want to set the weights for that. So there will be an error. Now this error, to correct that automatically, like any control system that take the output feed, compare with the input and carry out the correction. Uh, that same process of control engineering, control your control courses concept where you use the feedback to do that. Same thing is implemented here in neural network in a digital form. You do the back propagation and keep comparing these optimization of the slope. So you calculate in the forward direction, then to reduce the error, you moved in the backward direction to minimize or the error through this. And that will, in a way, complete our most essentials working of a deep learning thing. However, then these are some important things which go with this basic deep learning implementation, that you have to do some regularization and optimization. So we will look at those essential concepts for the implementation, the regularization and optimization. So that completes a very decent, powerful, essential set of things for learning and implementing of deep learning. So now we take the most popular major area of application of deep learning, that is convolutional networks. That is what has the deep learning as the biggest
need and success. In fact, the biggest problems coming with the machine learning were when the feature set size increased and people could not g- get it from the raw data that how to define those features efficiently, because when you go to images, number of pixels which become the input is so huge that doing that as by the feature engineering was very tough, or not, very difficult. So to automate that process, deep learning came. So convolution neural networks are the outcome of that. So this is our prime objective of learning, that can we handle convolution. So that opens all the, in addition to other things, all the world of image processing done by this artificial intelligence space. So this is our major thing. All these topics are from this text. In fact, there you might find one-to-one matching of things with that text, and then you can consult that text. Please do get the habit of, जो हम पहले भी चाहते रहे हैं, हमेशा ज़रूर करें कि हमेशा लर्निंग में हमारे कोर्सेज के लिए और एनी कोर्सेज के लिए पहले आप फोकस होके लेक्चर्स को देखें, समझें, सवाल करें, असाइनमेंट्स करें, साथ साथ थ्रू आउट लेक्चर स्लाइड्स के साथ साथ बुक को ज़रूर साथ देखते रहें, ताकि बहुत सारी डिटेल्स आपको वहाँ साथ मिलेंगी और हैबिट ऑफ लर्निंग फ्रॉम दैट रेफरेंस आपको रहेगी। जब आप ये चीज़ें कर रहे हों और उनमें आप कंफर्टेबल हों, फिर आप साथ, अगर यहाँ तक आपने चीज़ों को ठीक कर लिया है, फिर आप उससे आगे की बहुत सारी चीज़ें कर सकते हैं। यू कैन गेट टू द नेट, जैसे आप कई दफ़ा हर दफ़ा चले जाते हो, बट डोंट गो टू द नेट रॉ, go there prepared with some basic understanding of things, then you will sip out some very relevant, useful things and you can benefit from there. But if you just jump around without any basics with you on the net from the day one, then then you will be a lost person, not knowing basics and just hopping around and gaining nothing. सो प्लीज गो इन दिस वे। हम पहले भी आपको पिछले कोर्सेज में इस तरह लेके जाते रहे, अभी भी चाहेंगे कि आप ऐसे ही करें। ओके, it will be very interesting, and as I keep saying, it's most relevant to the current domains of learning in the present world. Fantastic things to learn, IoT and deep learning. Okay, any question so far? Now we will start our first topic, which is the learning of essential maths for deep learning. Any questions? No, Okay, sir. all right. चलिए, अब let's start this. As I said, first thing, kind of review. I would rather say review rather than teaching this, because you should have seen these things many a times in your college algebra and other basic linear algebra maths courses which we did here. Okay? So just bring you back, reminding you things and giving some opportunity of practicing them once more, and then using this learning and terminology immediately in our algorithms which will follow for the machine learning. So we say linear algebra not in general, linear algebra for machine learning only those parts. Okay, we want to thank Sargor and Srihari. He has from this text made, from these chapters of the text, these slides which represent that material very nicely, and we have chosen them, and we want to thank him and accept that we are benefiting from his work over here. Okay. Okay, so topics in linear algebra,
which will be covering are listed here as in this slide. Just why do we need linear algebra introduction? Then we learn what are scalar and versus tensor. We did talk about it जब हमने numpy किया था, क्योंकि ये numpy और ये चीज़ें उधर इस्तेमाल होती हैं और इसलिए और मैथ्स में भी होती हैं. और फिर आप अपने जब एल्गोरिथम लिखोगे मशीन लर्निंग डीप लर्निंग तो उसमें भी एक्सटेंसिवली टेंसर फ्लो नेम इज बेस्ड ऑन दिस वर्ड ऑफ टेंसर जो हम यहाँ पे ये बातें कर रहे हैं या करेंगे, दैट टेंसर फ्लो 1 and 2. Okay, so we see basically scalar and vector, you can say, but multi-dimensional vectors. तो हम इसको डिस्टिंग्विश करेंगे. फिर हम देखेंगे कि टेंसर्स का फ्लो मशीन लर्निंग में क्या है. फिर हम वी डिड इट, यू रिकॉल, जब हमने वो दोनों पिछले कोर्सेज भी किए थे, क्योंकि ये थ्रू आउट आपके इस्तेमाल हो गए और उसका मेजर एरिया ये लीनियर अलजेब्रा ही है था जहाँ से ये चीज़ें आई थी. अभी दोबारा आएंगी, इसको हम क्विकली रिव्यू कर लेंगे कि मैट्रिक्स ऑपरेशंस जो आपने किए हैं, अभी हमने आपको असाइनमेंट में भी इनको कराया क्योंकि हमें मालूम था कि ये चीज़ें आपने इस जगह इस्तेमाल करनी है, तो हमने पहले से ही आपको उसके लिए फेमिलियर कर दिया. आपको ये कंफर्ट लेवल होगा कि ये जो चीज़ें मैथ्स की बात हो रही हैं ये किस तरह एटलीस्ट आपकी पाइथन लैंग्वेज में इम्प्लीमेंट आपने की और किस तरह वो उससे रिलेट होती हैं. उसके बाद हम डीप लर्निंग से इनको रिलेट कर लेंगे आफ्टर दिस. इसके अंदर एक कल्मिनेशन ऑफ आवर लर्निंग, हमने डिटर्मिनेंट इनवर्स और ये तो पहले भी किया है, दोबारा करेंगे, टर्मिनोलॉजी इंट्रोड्यूस करेंगे और आपको आपने रिवाइज भी किया और मैट्रिक्स इनवर्स तक यू नो इट वेल, सो यू शुड बी हैविंग नो प्रॉब्लम. एक जो अभी तक हमें उन कॉन्टेक्स्ट में ज़रूरत नहीं पड़ी थी क्योंकि हम तो बस रेलेवेंट चीज़ों को करते हैं, तो फिर अब ज़रूरत है. तो इसी की एक्सटेंशन में आगे ये जो आइगन वैल्यूज और आइगन वेक्टर्स मैनी ऑफ यू माइट हैव कम अक्रॉस, शुड हैव कम अक्रॉस, तो उसको इससे रिलेट करके हमारा मटेरियल एक्सटेंड होगा इधर. तो फिर ये जब हम आइगन वैल्यू डीकम्पोजिशन करेंगे और वही फिर सिंगुलर वैल्यू डीकम्पोजिशन पर एक्सटेंड हो जाएगा, यानी बेसिकली डीकम्पोजिशन ऑफ आइगन वैल्यू डीकम्पोजिशन. इसका एक यूज प्रिंसिपल कंपोनेंट एनालिसिस में होता है. तो हम मैथमेटिकली प्रिंसिपल कंपोनेंट एनालिसिस जो यहाँ देख रहे हैं ये एज इट इज या विद वेरी लिटिल चेंज मशीन लर्निंग में इस्तेमाल होता है. तो ये उसकी एक एप्लीकेशन हो जाएगी. ओके, और ओके, yes, let me take, okay. सबसे पहले हम ये बहुत दफ़ा हमने यूज़ की, पॉलिनोमियल मैथ्स में भी जब हम कर रहे थे तो हम इसको यूज़ कर रहे थे रिपीटेडली. जो कोई भी मल्टीपल लीनियर वेरिएबल्स, जैसे अगर मैंने अभी भी जब रिवाइज किया था पाइथन के वक्त भी, हमने कहा था कि एक तो हमें पहले देखना लीनियर, ये वर्ड लीनियर का आया हुआ, ये इक्वेशन जो फिर दोबारा मैं आपको बता रहा हूँ, 3x प्लस 5 is equal to 7. This is a linear equation. Why? That this variable is of power 1 at the most. यहाँ पे इस टर्म में बेशक पावर 0 है मगर हाईएस्ट पावर ऑफ वेरिएबल इज 1, इसलिए लीनियर है. अच्छा, इट इज ऑल्सो सिंगल वेरिएबल लीनियर इक्वेशन, क्योंकि इक्वेशन है, बैलेंस हुआ है, सिंगल वेरिएबल खाली x है और लीनियर है क्योंकि पावर नहीं है. तो सिंगल वेरिएबल लीनियर इक्वेशन ये हम जानते हैं. इसको सॉल्व करने के लिए आपको एक ही इक्वेशन चाहिए, एक अननोन
एक इक्वेशन, इससे आप सॉल्व करें, x की वैल्यू फाइंड करें, दैट इज द सॉल्यूशन। और अगर वेरिफिकेशन क्या होती थी इसमें, कि हम वो x की वैल्यू जो इधर से निकलेगी, ऑफ कोर्स यू नो कि x की वैल्यू विल बी 7 - 5 डिवाइड बाय 3, दैट वो जो आंसर आएगा, वेरिफिकेशन हमेशा इक्वेशंस के लिए ऐसे ही हम करते थे, जो आंसर आया है यू विल पुट इट बैक इनटू इट एंड सी डज दिस रिमेन बैलेंस, इक्वेशन का आंसर दोनों तरफ का एक ही आता है, अगर आता है तो वेरीफाई हो गया दैट योर आंसर इज करेक्ट। ये हमारा बिल्कुल स्टार्टिंग पॉइंट था। इसी को हमने आहिस्ता आहिस्ता बढ़ाया। अभी हम लीनियर पे तो मुस्तकिल रहेंगे। व्हाट इट मींस इज कि हम जो भी हम नंबर ऑफ वेरिएबल्स इंक्रीज करते जाएंगे, मगर नो वेरिएबल विच विल पुट हियर विल हैव पावर मोर देन वन। यानी हम स्क्वायर टर्म, क्यूब टर्म, किसी भी वेरिएबल के इस्तेमाल नहीं करेंगे, दैट मीन्स लीनियर, हम लीनियर अलजेब्रा के डोमेन में। अच्छा, लेकिन हमने यहाँ सिंगल वेरिएबल लिया था। आपके ये वर्क इट कैन एक्सटेंड टू मल्टीपल वेरिएबल्स, तो हमने कहा ओके, जो लास्ट टाइम मैंने आपको बताया था 3x + 4y = 5 एंड मे बी अनदर इक्वेशन कोई 2x + 1y, या माइनस भी हो सकता था, इधर इधर भी हो सकता है माइनस, चले ये -1y = -7 से, ऐसे ही, which means coefficient can be plus or minus of any, but what we are saying is now we have two unknown or two variables x and y. Multiple variable linear equation दो है, यहाँ टू हम दिखा रहे हैं। ये रूल है कि अगर आपने दो अननोन्स को सॉल्व करना है, यू नीड एटलीस्ट टू इक्वेशंस। उनके सॉल्व करने के मेथड्स इसके भी हमने बहुत सारे थे, अभी रिसेंटली भी इस्तेमाल किया। एक तो जो ट्रेडिशनल मेथड से कि इधर से आप x की वैल्यू निकालें, इसमें डाल दें तो y निकल आएगा, क्योंकि x की वैल्यू इधर से निकाल के जो डालेंगे वो y की टर्म्स में होगी, तो यहाँ y की टर्म्स में सारी ये इक्वेशन फिर y वाली बन जाएगी। सब्स्टिट्यूट करने से y पता चल जाएगा, y की वैल्यू आप किसी भी इक्वेशन में डालें तो x पता चल जाएगा। एक तरीका हमारा सॉल्व करने का ये होता था। बट जितने अननोन्स है उतनी ही इक्वेशंस लाजमी हैं टू सॉल्व इट। इसलिए ये हिस्सा आपको स्क्वायर मैट्रिक्स की शक्ल में मिलता है कि जितनी इक्वेशंस जितने अननोन उतनी ही इक्वेशंस। तो जब आप इसको मैट्रिक्स से सॉल्व करते हैं तो आपको यहाँ हमेशा स्क्वायर मैट्रिक्स मिलती है। और यही काम जो अभी सब्स्टिट्यूशन से मैं बता रहा था आप कर रहे थे, सब्स्टिट्यूशन के बजाय आप वो भी तरीका हम करते रहे हैं, इफ़ यू रिकॉल, कि आप इनको दोनों को ऊपर नीचे लिखें, सब्स्टिट्यूट नहीं कर रहे आपने इसको लेट्स से किसी भी x या y को एलिमिनेट करने के लिए फॉर एग्जांपल इस पूरी इक्वेशन को आपने 4 से मल्टीप्लाई किया, पूरी इक्वेशन, सारी इक्वेशन को थ्रू आउट बोथ कोई ऑपरेशन हम कर सकते हैं, यानी मल्टीप्लाइंग बाय 4 बोथ साइड्स, एडिंग अ 4 बोथ साइड, सब्ट्रैक्टिंग अ 4 बोथ, कोई भी काम किसी इक्वेशन के दोनों साइडों पे बैलेंस किया जा सकता है। तो अगर आपने इस इक्वेशन को सॉल्व करना है तो एक तरीका ये है कि हम इसको लेट से किसी भी कॉलम में कोएफिशिएंट्स को बराबर कर लें और फिर कैंसिल, वो वेरिएबल कैंसिल हो सकता है। यहाँ पे मुझे आसान ये लग रहा है कि मैं y को कैंसिल करूं तो मैं पूरी इक्वेशन को 4 से मल्टीप्लाई करूंगा, 4 से मल्टीप्लाई, इसका मतलब ये 8x हो जाएगा, ये 4y हो जाएगा और ये 28 हो जाएगा, -28, ये -4y। फिर मैं इन इक्वेशंस को ऐड या सब्ट्रैक्ट दोनों इक्वेशंस को कर सकता हूं। तो मैं फिर ये -4 है और ये इसको ऐड करूंगा अगर इन टर्म्स को, तो मैं ये 0 हो जाएगा, y विल वैनिश। इधर जो है ये 8 है, 8 3 11x, और इधर ये 4 28 और -28 और 5 का जो भी आंसर है -23, तो वो बन जाएगा। अब सिर्फ x एक वेरिएबल होगा, अगेन इस तरह आप उस x को फाइंड कर लोगे, तो आपको x फाइंड हो जाए तो आप वो वैल्यू रख के y फाइंड कर सकते हो। तो ये हमारे तरीके थे, हमारे कॉलेज अलजेब्रा में इक्वेशंस को डील करना, उनको सॉल्व करने का तरीके थे।
इसी की एक ऑर्गेनाइज्ड फॉर्म जो आपने अभी रिसेंटली भी फॉलो की है, कि आप यही काम जो अभी हम कर रहे थे कि फाइंडिंग द वैल्यू ऑफ एक्स एंड वाई, इसको प्रॉपर ऑर्गेनाइज तरीके से करना। जब ये बहुत इक्वेशंस हो जाएंगे, साइज बढ़ जाएगा और उसको ऑटोमेटेड तरीके से आप करना चाहेंगे, तो बेस्ट वे इसके मैट्रिसेस के जरिए करें। तो हम ये करते हैं कि वो एफिशिएंट की मैट्रिक्स लिख ली, जैसे इस केस में हमने कहा 3 2 4 - 1, ये लिखी, ये हमारा ए होता है। और फिर हमने इसके साथ जो अननोन वेरिएबल होते हैं वो लिख लिए, वो एक्स वाई है, इस केस में वो एक्स वाई है। और इसको फिर हमने इक्वल टू लिखा, जो अभी किया है, यू हैव डन रिसेंटली दिस थिंग, 5 and -7। इनको हमने नाम दिया और यूज किया जो कर रहे हैं, कि हम ये कहते हैं कि यार इस मैट्रिक्स ऑफ कोएफिशिएंट्स को ए कह देते हैं, और यहाँ ये सारे जो कुछ है इसको एक्स वेक्टर कह देते हैं, और इसको कह देते हैं इज इक्वल टू बी वेक्टर। ये एक वेक्टर है, ये वाला, ये एक वेक्टर है, और ये एक मैट्रिक्स है ये। और हम इसको सॉल्व करने के लिए हम कहते हैं कि हमें असल में ये एक्स वाई ही फाइंड करना था, जैसे हम यहाँ कर रहे थे। तो हम कहते हैं हमें ये एक्स वाई वाला ये एक्स वेक्टर मालूम करना है। इसको करने के लिए हमने कहा हम दोनों साइडों से ए इनवर्स से मल्टीप्लाई करें, ए इनवर्स, इधर भी ए इनवर्स। इसका मतलब हुआ कि ये ए इनवर्स किया तो ये आई हो जाएगा, तो ये आई एक्स हो जाएगा इज इक्वल टू ए इनवर्स बी। अब इसका मतलब हुआ कि अगर हमें ये पूरा एक्स वेक्टर मालूम होना है जिसमें तमाम चीज़ें हैं, एक्स वाई जेड या एक्स जीरो एक्स वन जो भी, इस मालूम करने के लिए आई का मतलब है कि ये सेम रहा, ये एक्स ही रहेगा, आई एक्स इज इक्वल टू एक्स। तो एक्स मालूम करने के लिए हम इस ए को, जो कोएफिशिएंट मैट्रिक्स का ए हमने डिफाइन किया मैट्रिक्स, उसका इन्वर्स मालूम करते थे, और फिर उसको वेक्टर बी से मल्टीप्लाई करते थे, जो आपने भी किया है। और उससे आपको ये वेक्टर ऑफ अननोन्स पता चल जाता था, सारी वैल्यूज, क्योंकि एक वेक्टर आएगा, इसका आंसर एक वेक्टर होगा। तो दिस वेक्टर जो ये सारा इधर है, एक्स वाई जेड, सपोज है आपका एक्स वाई जेड, 3 का अगर था, ये 2 का मैंने मिसाल दी, और इधर इसके वैल्यूज आ जाती हैं, ए इनवर्स और बी को मल्टीप्लाई करके यहाँ वैल्यूज आ जाती हैं, जो भी 3, ये आपके आंसर हैं। और सो ये वैल्यूज आपने कैलकुलेट कर ली। अब वेरीफाई करने का मतलब है कि ये वैल्यूज आप ओरिजिनल इक्वेशन में डालें, और आप देखें कि all the equations are satisfied, which means when you put these values in those equations, they remain balance both sides. Answer of left side and answer of right side remains correct. That is verification, कि आपने जो भी कुछ सॉल्व किया, अगर आपको देखना है कि मेरा काम सही हुआ, आप पुट बैक द वैल्यूज एंड सी द रिमेन्स इक्वेशंस रिमेन बैलेंस। ये हमने अभी रिसेंटली भी रिवाइज किया, अभी हमने इस लीनियर अलजेब्रा के बैकग्राउंड के लिए कर दिया। अब जो टर्मिनोलॉजी हम यहाँ यूज करेंगे जनरलाइज्ड, वो होगी यही वाला चीज, लाइक द पॉलिनोमियल्स जो हमने अभी पिछले दिनों इस्तेमाल की थी फॉर द पर्पज ऑफ एक्सप्रेसिंग आवर बाइनरी वर्ड्स एंड देन जी एफ टू द पावर एन कैलकुलेशन करना। उन लाइंस पर हम इसकी जनरलाइज्ड चीज़ को डील करेंगे, कि वहाँ एक्स हम पावर की शक्ल में शो कर रहे थे, यहाँ कोएफिशिएंट में कर रहे हैं, क्योंकि अब हमारे वेरिएबल जो थे, जैसे ये था एक्स वाई, अगर आप इनके नाम इसी लाइंस पे करते जाएं तो आप पहले एक्स फिर वाई फिर जेड डब्ल्यू आर के इस तरह करते जाते थे। तो जब भी आप जनरलाइज और बिग वेक्टर्स की बात करते हैं, तो उस पॉलिनोमियल वाले असूल के तहत आप इस एक्स ही के x1 x2 x3 x4 xn कह देते हैं। You think of them as x y z w as variable unknowns, और इनके साथ जो हमारे कोएफिशिएंट थे, जैसे ये 3 4 वगैरह, उसके लिए आपने जनरलाइज हमने ए आई A1 A2 A3 A4 इस्तेमाल किया। तो यही वाली चीज जो यहाँ लिखी है, इसको n वेरिएबल लीनियर इक्वेशन लिखने का एक स्टैंडर्ड तरीका जो हम फॉलो करेंगे इसमें थ्रू आउट, वो ये है जो हम फॉलो करेंगे, कि आप एक्स वाई जेड की जगह एक्स वन एक्स टू एक्स एन कहें, और उनके कोएफिशिएंट्स या कांस्टेंट्स की जगह ए वन ए टू ए एन कहें। तो ये इक्वेशन बन गई इक्वल टू बी, राइट हैंड साइड पे जो कांस्टेंट होता है। सो दिस इज आवर जेनरिक
multivariable linear equation, और that is what the linear algebra deals with. इसके बारे में. अच्छा, अब इसको अगर आप वेक्टर नोटेशन में कहें तो हमारा क्या है कि ये जो हमारा वी नो काइंड ऑफ मल्टीप्लिकेशन ऑफ टू वेक्टर्स, यानी ये एक्चुअली क्या है, हम इसमें एक ये जो ए टू ए एन इज वन वेक्टर, ये ए है. लेट से मैं कहता हूं एक वेक्टर आपका है ए, और वो क्या है वेक्टर ए विच हैज कंपोनेंट्स फ्रॉम a1 a2, ये उसके कंपोनेंट्स हैं. लेट से कॉमा भी डाल सकते हैं, a2 डा 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 an n कंपोनेंट वेक्टर a, आप इस तरह लिख सकते हैं. एक और वेक्टर x आप लिख सकते हैं, x1 x2 etc xn. तो n component another vector is this. अच्छा, अब बेसिक एसेंशियल इनिशियल जब हम कहें a और a x, अगरचे हम ये हॉरिजेंटली लिखते हैं, इनको बाय इनिशियल स्टेट में जब हम a और x कहें तो हमारे तमाम इस थ्रू आउट में हमारे पास चॉइस था. तो नॉर्मली जैसे पहला पार्ट जब 2 डायमेंशन में भी गए थे तो हमने देखा था जब एक्सिस डिफाइन कर रहे थे तो हमने पहले ये हाईएस्ट वाले एक्सिस को डिफाइन किया. जब हम मैट्रिक्स पे आए और काम कर रहे थे, जब हमने एक्सिस की भी बात की और एक्सिस को लिस्ट करना लगा, तो हमने कहा भाई ये पहले रोज होते हम डील करेंगे फिर कॉलम, इसलिए हमने इसको एक्सिस 0 कहा और इसको एक्सिस 1 कहा. और इसी तरह फिर जब ये और आगे बढ़ते जाएंगे तो हम जो भी ये हाईएस्ट वाला है उसको सबसे पहले लिखते हैं. अच्छा, तो अब हम क्योंकि मैट्रिक्स जैसे आगे जब डायमेंशन बढ़ेंगी तो मैट्रिक्स में पहला एक्सिस ये वाला है, तो हमारे इसमें इस एक्सिस के अलोंग हमारे क्योंकि ये कॉलम के वेक्टर्स होते हैं इस एक्सिस में, ये यानी आप एक्स चेंज हो रहा है, कॉलम चेंज नहीं हो रहा, पहले ये एक्सिस के गिर्द चेंज हो रहा है. तो हम उसके अंदर ये चीज लेते हैं. इसलिए एनी वेक्टर जो सिंगल वेक्टर है उसको भी बाय डिफॉल्ट जब हम कहें ए वेक्टर और एक्स वेक्टर, तो इस थ्रू आउट इस उसमें हम कहेंगे ए वेक्टर मींस नॉट दिस वे, और जैसे हमने वहां हॉरिजॉन्टली लिखा, ए वेक्टर मींस ए वर्टिकली रिटर्न वेक्टर, वन कॉलम a1 a2 और an. ये हमारा ए वेक्टर है. अच्छा, इसी तरह हमारा बेसिक जब हम कहें एक्स वेक्टर तो इसका मतलब ये होगा. हमने पहले अपनी कॉमन अंडरस्टैंडिंग से, क्योंकि हम लाइन में हॉरिजॉन्टली लिखते चीजें तो हमने लिखी और उसके मायने देखे, मगर एक्चुअली कंसिडरिंग द ऑर्डर ऑफ डायमेंशंस, हम स्टार्टिंग इज दिस डायमेंशन रो वाली, तो ए वेक्टर इज रो इनटू 1, एक्स वेक्टर इज नंबर ऑफ रोज इनटू 1, एक कॉलम है. तो इस तरह ये x1 से लेकर और xn तक चलेगा. ओके, क्योंकि हम इस तरह इसकी बेसिक डेफिनेशन ये है, किसी भी वक्त इवन फॉर राइटिंग अगर हमें x को हॉरिजॉन्टली लिखना होता है तो हम फिर इसको इस तरह लिखते हैं. ये x को हम ऐसे लिखेंगे, ये इन ट्रांसफॉर्म. इट मीन्स कि हियर इज दिस x, इस x को आप हॉरिजॉन्टली लिखना चाहते हो तो इस तरह लिखोगे टी के साथ, क्योंकि वही रो इज रिटन एज कॉलम एंड कॉलम इज रिटन एज रो. अगर आप रो में इस बात को कहना चाहते हो तो आप टी डालोगे. इसी तरह ए को अगर आप रो में लिखना भी चाहते हो और तो आप इसमें यहाँ टी डाल दोगे. ये तो ए इज बेसिकली दिस थिंग विद टी, एक्स इज बेसिकली दिस थिंग विद टी, अगर आपने इस तरह लिखना है, वरना आप इस तरह लिखेंगे. अच्छा, अब अगर इन दो
ये जो चीज है ये हमें यहां नजर आ रही है, इट इज नथिंग बट द मल्टीप्लिकेशन ऑफ टू वेक्टर्स। मल्टीप्लिकेशन ऑफ टू वेक्टर्स का मतलब होता है आप इस पहले की रो और दूसरे के कॉलम को अगर मल्टीप्लाई करें या उसका कॉलम और उसकी रो को करें तो आप इसको सॉल्व कर सकते हैं इसको। ठीक, तो आपने इन दो वेक्टर्स को मल्टीप्लाई करना है, विच इफेक्टिवली एट वेक्टर मल्टीप्लाई मींस जस्ट डॉट प्रोडक्ट ऑफ दिस एंड दिस, इन दो की डॉट प्रोडक्ट लेनी थी। इसके लिए आपने ए को और एक्स को डॉट प्रोडक्ट लिखना था। अब अगर इनको मल्टीप्लाई करने के लिए लिखना है तो आपने ए को ए टी की शक्ल में ये हॉरिजेंटली लिखा, एक्स को इसी तरह वर्टिकली रहने दिया, तो ये ए और ये एक्स यानी ये वाली रो और ये वाला कॉलम आपस में मल्टीप्लाई होंगे तो ये डॉट प्रोडक्ट कैलकुलेट होगी और उसका आंसर ये जो भी है वो ये लिखेंगे। तो इनको इस इक्वेशन को जो हमने कहा था वी कैन एंड अगर हम लिखना चाहते हैं एक्सप्रेस करना तो वी शुड राइट दिस कि ए का ट्रांसपोज मल्टीप्लाइड बाय एक्स इज इक्वल टू बी, ये इसको हमने लिखा है वेक्टर। ओके, ये हमारी टर्मिनोलॉजी है जो थ्रू आउट चलेगी। अब ये जो भी लीनियर अलजेब्रा की हम चीजें कर रहे हैं वो हमेशा मोस्ट ऑफ देम ज्योमेट्रिकली डिफाइन और एक्सप्रेस किए जा सकते हैं और अंडरस्टैंड किए जा सकते हैं। तो जैसे सिंगल लाइन एक एक पॉइंट, बेसिकली ये किस चीज को शो कर रहा है, बेसिकली ये हो रहा है कि ये एक पॉइंट अगर स्पेस में है जिसके पैरामीटर्स x1, जिसके कोऑर्डिनेट्स पॉइंट्स x1 और x2 हैं, तो आप इन दो इस पॉइंट के लिए अगर ये वेक्टर फ्रॉम जीरो से इसकी तरफ एक वेक्टर बनाए तो आप बेसिकली ये कहेंगे इधर x1 और इधर x2। ये वेक्टर सम के लिहाज से देखें तो ये पॉइंट इज फर्स्ट इन फर्स्ट डायमेंशन दिस x1 और फिर x2। तो हम इसको लिख रहे होते हैं कि अगर x इसका अक्सर ये लेट से i x1 इन i और x2 इन j, तो हम x1 i प्लस x2 j करके इस वेक्टर को लिख रहे होते हैं। तो हम इस पॉइंट को के लिए वेक्टर शो करने का हम ये तरीके से कर सकते हैं कि हम इनको जो भी इसके ये चीज़ें हैं कंपोनेंट्स हैं उनकी शक्ल में इसको लिखें और एज ए वेक्टर एक्सप्रेस करें। ये काम हम कर रहे हैं। तो जब ये हम कहते हैं कि ये या एज ए लाइंस, ये चीज़ें हमारे एज ए लाइंस और प्लेन्स और उनकी रोटेशंस के तौर पर शो किए जा सकते हैं हमारे पॉइंट। फिर टू डायमेंशनल ये मैट्रिक्स में ये चीज़, ठीक है, फिर थ्री डायमेंशनल चीज़ें, तो हम इसको लाइंस प्लेन्स की शक्ल में ये जो एक्सप्रेशन है उन्हें शो कर सकते हैं। सॉल्विंग ऑफ इक्वेशन का मतलब ये था कि अगर ये वाली इक्वेशन थी तो ये इक्वेशन थी लाइक y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी, आप इसको जैसे कहते थे ना कि उसका m अगर स्लोप है, ये इक्वेशन इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी, ये जो पहली आपकी इक्वेशन, ये अगर आप इसको चाहें तो उस शक्ल में सॉरी ये सेकेंड इक्वेशन, पहली इक्वेशन एक वेरिएबल है यहाँ पे y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी की शक्ल में। तो लाइन वेक्टर जब ये दो पॉइंट से आप बना रहे हैं तो ये लाइन वेक्टर बन गए। इसको स्लोप की शक्ल में लिखते थे तो हम इस तरह लिख देते थे
अगर इन दो इक्वेशंस को हम सॉल्व कर रहे हैं तो इसका मतलब है एक इक्वेशन में भी कोई इस तरह की चीज हो और दूसरी इक्वेशन को इस तरह की चीज हो। ये दोनों इक्वेशंस दो वेक्टर्स ऑफ लीनियर वेक्टर्स लाइन एक्सप्रेस हो सकते हैं और इनका सॉल्यूशन जो हमने निकाला था वो इनका इंटरसेक्शन पॉइंट था। उस पर जो वैल्यूज हैं ये दोनों x1 और y1 की या x और y की, they are the answer. The solution means intersection point of such linear equation. जब ये प्लेन में थी यानी ये लीनियर लाइंस थी और इनका एक पॉइंट इज द सॉल्यूशन। यही बात जब आप मल्टीपल डायमेंशन में चले जाते हैं तो आप स्पेस में एक प्लेन को डिफाइन कर रहे हैं बाय दिस लीनियर इक्वेशन जो हमने यहाँ लिखी है। आप एक स्पेस में एक प्लेन को बता रहे हैं ये x1। और फिर अगर आप ऐसी मल्टीपल इक्वेशन सॉल्व करके आंसर निकाल रहे हैं तो आप उन प्लेन्स के इंटरसेक्शन का जो कॉमन लाइन है वो फाइंड कर रहे हैं। लेट्स से यहाँ दो लाइंस के इंटरसेक्शन पे पॉइंट था। अब आप कहो कि मेरा एक, अब आप एक प्लेन और एक और दूसरा प्लेन आपस में कैसे, दे विल इंटरसेक्ट नॉट ऑन ए पॉइंट, दे विल इंटरसेक्ट ऑन ए लाइन। ये दोनों प्लेन लेट्स से ये वर्टिकली सिंक पे है तो ये इस लाइन पर ये दो इंटरसेक्ट करेंगे और फिर इनका सॉल्यूशन ये इंटरसेक्शन लाइन होगी। ठीक है, तो स्ट्रेट लाइंस डिफाइन कॉमन सॉल्यूशंस टू दीज इक्वेशन। दीज इक्वेशंस रिप्रेजेंट प्लेन थिंग्स इन स्पेस और उनका इंटरसेक्शन विल बी ए लाइन वेयर दोज प्लेन्स इंटरसेक्ट लाइक दिस। ये जो डायग्राम में इधर बनाया हुआ, ओके। तो प्रैक्टिकली या फिजिकली ये हो रहा है इसमें। ओके, अब ये इसका ओके, व्हाई डू वी नीड के इंजीनियरिंग में इंजीनियरिंग प्रॉब्लम्स में जो यहाँ पर भी हमारे इंजीनियरिंग प्रॉब्लम्स हैं जिनको हम सॉल्व कर रहे हैं, इसके अंदर कंटिन्यूस मैथ है। आप एज ए, हम सब एज ए कंप्यूटर साइंटिस्ट हम सारा कुछ डिस्क्रीट या बाइनरी डिस्क्रीट ही की एक एक्सट्रीम फॉर्म है, हम वो करते हैं और उसके मैथ्स और उससे बहुत ओरिएंटेड होते हैं। लेकिन रियल लाइफ में लॉट ऑफ प्रॉब्लम्स आर कंटिन्यूस टाइप। तो कंटिन्यूस मैथ में आपको ये वेरिएबल्स इसमें एक्स वाई जेड जो थे वो लीनियर लीनियर उनका इसीलिए मायने वो कंटिन्यूस टाइप चीजें हैं, कंटिन्यूस बिहेविंग है। तो रियल लाइफ में बहुत बिग प्रॉब्लम्स कंटिन्यूस वेरिएबल्स का है, इसलिए हमें उसके मैथ्स को सीखना है और उसके एक्सप्रेस करने के लिए हमें लीनियर अलजेब्रा हम देख रहे हैं। और ये दूसरी बात जो मैंने बताई दी कि ये हमारे मशीन लर्निंग के एल्गोरिथम्स को अंडरस्टैंड करने के लिए ज़रूरी है कि हम ये इस तरह की सिचुएशन करेंगे। इनपुट वेक्टर जो होता है मशीन लर्निंग के सिस्टम में, जो इनपुट एंटर हो रही होती है दैट इज लाइक ए वेक्टर ऑफ सच काइंड x1 से x2, जो उसके अंदर से प्रोसेस होगा, ट्रांसलेट होगा, मैनिपुलेट होगा और आउटपुट पे एक आंसर डिपेंड करता है कि यस नो वाला चाहिए या मल्टीपल क्लासेस चाहिए या वैल्यूज चाहिए, वो हम बाद में कर देंगे। लेकिन इनपुट आपकी हमेशा वेक्टर की शक्ल में होगी। अगर बहुत सारे वेक्टर्स को के सीक्वेंस को आप जब फीड करते हो तो आप कहोगे कि इनपुट इज लाइक ए मैट्रिक्स। तो वेक्टर और मैट्रिक्स की शक्ल में इस तरह मल्टीपल वेरिएबल के वेक्टर्स को डील करना आपको वहां जरूरत पड़ती है। और ये आउटपुट जो निकलेगी इनपुट वेक्टर्स, इट ट्रांसलेट्स इनपुट वेक्टर्स इनटू द आउटपुट्स बाय अ सीरीज ऑफ लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन। यानी ये जो आपको इनपुट दे रहे हैं आप, ये ट्रांसफॉर्म होगा लीनियरली at multiple stages maybe or it will get a final out. So vector है या मैट्रिक्स है और उसको लीनियरली ट्रांसफॉर्म करेंगे आप बाय सर्टेन मैनिपुलेशंस और उसका रिजल्ट निकालेंगे। ये आप उसके एल्गोरिथम में अल्टीमेटली बॉटम लाइन में ये हो रहा होगा, फिर वो प्रैक्टिकल चीजों से लिंक होंगे। So concept of linear algebra needed for machine learning and omit other aspects.
दूसरे, ये मैंने बता दिया था कि दूसरे लीनियर अलजेब्रा की चीजें हम शायद यहाँ ना सीखें, वो इट्स नॉट ए कम्प्रिहेंसिव कोर्स ऑन लीनियर अलजेब्रा। ओके, ये वो सारे टॉपिक्स जो मैंने शुरू में ब्रीफली कहे थे वो बिल्कुल एग्जैक्ट वन बाय वन शक्ल में आपके यहाँ हैं। स्केलर वेक्टर मैट्रिसेस, टेंसर्स, मल्टीप्लाइंग मैट्रिसेस एंड वेक्टर्स, हम जानते हैं। आइडेंटिफाइंग एंड इनवर्स मैट्रिक्स, आइडेंटिटी एंड इनवर्स मैट्रिक्स, लीनियर डिपेंडेंस एंड स्पैन। लीनियर डिपेंडेंस क्या है और स्पैन क्या है, नॉर्म्स क्या है, स्पेशल काइंड्स ऑफ मैट्रिसेस एंड वेक्टर्स क्या हैं। ये वो चीज़ है जो मैं ऐसे कह रहा था कि हमने अपने पिछले उनमें नहीं की, अब हम ये सिर्फ एक ऐड करेंगे, आइगन वैल्यू डिकम्पोजिशन, ये आइगन डिकम्पोजिशन ये है, और यही डिकम्पोजिशन सिंगल वैल्यू डिकम्पोजिशन के शक्ल में एक्सपैंड हो जाएगी। फिर ये मूर्स पेनरोज, ये पर्सन नेम, उसके सूडो इनवर्स में काम आएगा कि सूडो इनवर्स क्या है, उससे ट्रेस ऑपरेटर और द डिटर्मिनेंट, और फिर उससे प्रिंसिपल कंपोनेंट एनालिसिस हमारे उसमें आएगा। ओके, सो फर्स्ट पार्ट इज वेल नोन बाय अस, मे बी हमें यहाँ से कुछ चलें, यहाँ ये तो बिल्कुल ही हमें आता है, इसको हम गो थ्रू क्विकली करते हैं और फिर उसके आगे जहाँ पे कोई नई चीज़ होगी उसको ज़रा सा ज़्यादा उससे देख लेंगे। टर्मिनोलॉजी अलबत्ता हम बिल्कुल शुरू से आपको फेमिलराइज कराएंगे, क्योंकि फिर यही हमारे प्रोग्राम्स में, अल्गोरिदम्स में एस जनरली इसी शक्ल में होगी। ये जैसे अब दिस वे ऑफ राइटिंग ट्रांसफॉर्म जस्ट टू से दैट प्रोडक्ट ऑफ दोस टू मैट्रिक्स, अब ये एक तरीका है जो हम थ्रू आउट आपके उसमें नजर आता रहेगा, आपको मैट्रिसेस की शक्ल में भी यही तरीका नजर आएगा, तो वो हम उस हद तक जरूर बताएंगे टर्म। तो स्केलर और वेक्टर, आप एक्सक्यूज लोगों मी ने सर। बहुत टाइम पहले स्केलर स्केलर हम कहते हैं यार नंबर है, उसकी कोई डायरेक्शन नहीं है। वेक्टर जो है, एक्सक्यूज मी सर। जी सर ये आप कौन से वेबसाइट से हमें प्रोवाइड कर रहे हैं, या कोई बुक आपने कौन सी वो हमें दी है कि हम उससे पढ़ें, या ये वेबसाइट बता दें जिससे आप हमें। आपने अभी ज्वाइन किया या आप शुरू से हैं हमारे साथ आज के लेक्चर में? नहीं नहीं, शुरू से आए हूँ, पर शुरू में भी थोड़ा लेट आए हूँ सर जी। बस तो ये मसला है। ये जो आपके दोनों क्वेश्चन हैं, हमने इस पे कोई 15 मिनट खर्च किया पहले स्टार्ट में। चलिए ठीक है, मैं किससे पूछ लूंगा सर जी। अच्छा, चलिए, हमने ओके, आपको बुक थैंक भी यू सर। बता दी है, बड़ी वेल नोन गुड फेलो की बुक है डीप लर्निंग के बारे में। वो बुक है, जी सर। उसी के शुरू के चैप्टर लर्निंग ऑफ मैथ्स फॉर मशीन लर्निंग, एसेंशियल मैथ्स फॉर मशीन लर्निंग है उस बुक के चैप्टर्स में। ठीक है सर। उसके उस बुक ही के मटेरियल को टॉपिक बाय टॉपिक हम उसी के मैथ्स को लेकर इन स्लाइड्स में आपको एक्सप्लेन कर रहे हैं, और हम बता रहे ठीक है हैं सर। कि ये वो मैथ्स है जो आप लोग रिपीटिंग अगेन कॉलेज अलजबरा और MYU के लीनियर अलजबरा और मैनी कोर्सेज में काफ़ी दफ़ा आपको करके बहुत फेमिलियर होना चाहिए। बट सम पीपल से सर मैंने वो किया था तो भूल गया, या मुझे समझ नहीं आई थी, या अब हमें उसको यूज़ करना है, मतलब अब आपको उसको पूरा समझ होनी चाहिए, खाली ये नहीं था कि कोर्स कर लिया है या एक ग्रेड ले लिया। इसलिए अब हम फर्दर कि हम प्री एज्यूम नहीं कर रहे कि आप ये सारे मैथ्स जो मशीन लर्निंग के लिए चाहिए आपको पहले से आते हैं। मैनी ऑफ यू मे बी फीलिंग या हैविंग दैट काइंड ऑफ डेप्थ कि उन्हें आते हैं, मैनी ऑफ यू मे नॉट। तो हम एक क्विक ओवरव्यू ऑफ दो एसेंशियल मैथ्स और मशीन लर्निंग को कर रहे हैं इस वक्त, ये काम हम कर रहे हैं, ठीक है? आर यू विद अस नाउ? यस सर, यस सर। Okay. Old times, scalar vector. Scalar has only value, no direction. Vector has magnitude and direction. और उसको फिर हम वो इस आई जे के और उससे हासिल करते थे, वो उसके कंपोनेंट होते थे। वो जो कंपोनेंट्स वेक्टर के हैं, ऑर्डर्ड कंपोनेंट, उनको हम यहाँ अरेज या इस शक्ल में शो कर रहे हैं। जहाँ जब हम ये इसकी ये अभी हमने एग्जांपल ली ATX की, तो उस स्लाइस की। अब हम कह रहे हैं स्केलर के बारे में, इट्स ए सिंगल नंबर
कि दूसरी चीज़ें जो थी उनके मुकाबले में जो अक्सर हम देख रहे हैं अरेज और उसकी शक्ल में होती हैं, वो सिंगल नंबर है, स्केलर। इसको लिखने के लिए थ्रू आउट, अब जब आप हम सारा मैथ्स भी करेंगे और आगे एल्गोरिदम भी करेंगे, तो हम एक प्रैक्टिस कोई चूज करते हैं, वो ये है कि लोअर केस इटैलिक में आपको ये नजर आएगा जब आपको स्केलर वैल्यू लिख रहे हैं आमतौर पे, विद द एक्सेप्शन कि किसी जगह आप दूसरी तरह कर रहे होंगे तो वो डिफाइन कर लेंगे, मगर एज ए डिफॉल्ट प्रैक्टिस हम ये कह रहे हैं कि स्मॉल एक्स इटैलिक में हम स्केलर वैल्यू को शो किया करेंगे। ये x कैन बी ईदर रियल वैल्यू और इंटीजर, यानी ये जो हमारी वो डाटा टाइप में होता था, इंटीजर भी हो सकता है जो होल नंबर्स हैं, और प्लस माइनस होल नंबर 0 इंटीजर, और इट कैन बी ए फ्लोट और रियल वैल्यू के जो डेसिमल के साथ फ्रैक्शनल पार्ट भी रखती है। दोनों में हमारा ये स्केलर हो सकता है। लाइक ये फॉर एग्जांपल उसने कह दिया कि x an element of the be the slope of the line defining a real valued scalar, or n be the number of units defining a natural number scalar। तो हमने इनमें दोनों का इंटीजर्स का एक हिस्सा नेचुरल नंबर होता है 0 से और प्लस वाला, तो उसी या ये वैल्यू जो है स्केलर की, इट कैन बी नेचुरल नंबर, लाइक कई जगह n एलिमेंट ऑफ सम नंबर ऑफ यूनिट्स, किसी चीज की तादाद की बात हम करते हैं तो फिर एक सेट देते हैं जो नेचुरल नंबर का होता है, उसमें ये n विल बी ए मेंबर ऑफ सच सेट। बाज दफा जैसे लाइन का स्लोप या वैल्यू ऑफ टेम्परेचर और थिंग्स लाइक दैट, हम उनको फ्लोटिंग पॉइंट वैल्यूज में शो करते हैं, तो वो जो वेक्टर होगा उसका एलिमेंट x जो है, x इज एलिमेंट ऑफ सच थिंग, वो रियल वैल्यू स्केलर हो। जैसे मैंने बताया, ये आपको थोड़ा इस स्लाइड्स में जहाँ ये डा 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 इट मीन्स दिस, ये बहुत जगह है, तो आप हमेशा इसको इस तरह समझेंगे कि ये आपका बड़ा ब्रैकेट था वेक्टर का, ये कंटिन्यू रहेगा, कन्वर्शन में हमारे से ये इसमें हुआ है, तो ठीक है। अच्छा, तो x वेक्टर अभी मैंने लिखा था x1 x2 xn, अब हम वेक्टर की तरफ आ गए। इट्स एन अरे ऑफ नंबर्स अरेंज इन एन ऑर्डर। जैसे वेक्टर में i j k l एक सीक्वेंस होता है और उसके साथ उसका ताल्लुक होता है, इसी तरह ये भी ऑर्डर में है। ईच नंबर इज आइडेंटिफाइड बाय एन इंडेक्स, हम अरे में जैसे करते हैं, हर पोजीशन को किसी इंडेक्स से आइडेंटिफाई करते हैं। इस केस में हमने 1 से शुरू करके n पे लिए हैं, आप अक्सर सी में भी और बहुत सी जगहों पे इनको x0 से xn-1 तक लिखते हो, वो भी ठीक है, और इंडेक्स उस तरह इस्तेमाल करते हो। यहाँ जस्ट फॉर द पर्पज ऑफ ईज x1 से xn वाला ऑप्शन को इस्तेमाल किया हुआ है। और इसको लिखने के लिए किसी वेक्टर के जो कंपोनेंट्स हैं उनको उसी तरह, क्योंकि ईच वन ऑफ देम इज ए स्केलर, ये वेक्टर है, इसमें हर कंपोनेंट एक स्केलर है, तो उसके लिए वही लोअर केस बोल्ड सच एज एक्स, ये तो हो गया वेक्टर के लिए, कि वेक्टर को आपने लिख दिया इस तरह। एलिमेंट्स आर इन इटैलिक लोअर केस, यानी वेक्टर को आपने लोअर केस बोल्ड में लिखा ये, और इसके कंपोनेंट्स को पहले ही की तरह जैसे स्केलर थे आपने लोअर केस इटैलिक में लिखा और उनको बता दिया, ये तरीका है। अच्छा, ईच एलिमेंट इज आर देन। अच्छा, अब इसमें हमने जैसे कहा कि आप किस नंबर स्कीम के डोमेन में हैं, हमारे पास डिफरेंट वे, आपने रियल नंबर्स के लिए, रियल नंबर के सेट, डोमेन ऑफ ऑल रियल नंबर्स के लिए हम ये वर्ड इस्तेमाल करते हैं आर, ये अक्सर जगह टू टेल दैट कि ये रियल नंबर के सेट से बिलोंग करते हैं ये एलिमेंट, तो ये आप आर की टर्म इस्तेमाल करते हैं। अच्छा, अब एक्स के वेक्टर में आपकी कंपोनेंट की तादाद n है, तो फिर आप कहेंगे कि ये जो x वेक्टर है इट इज इन रियल नंबर सेट के n एलिमेंट्स या n वैल्यूज को लेकर बना है। तो आपका ये तरीका है, x इज इन Rn, ये हम लिखेंगे और यही एक्सपेंड हो जाएगा मैट्रिसेस पे एंड अदर थिंग्स पे।
और जैसे मैंने बताया कि वेक्टर इज एज ए पॉइंट इन स्पेस एंड ईच एलिमेंट गिव्स द कोऑर्डिनेट्स अलोंग दैट, जो मैंने आपको अभी मिसाल बताई कि ये वेक्टर है और ये यहाँ है सपोज, और इधर ये एक, अगर ये पॉइंट इस वेक्टर का है, मे बी ये एक्स एक्सिस अगर आपका है, एक्स एक्सिस, ये वाई एक्सिस, ठीक, तो आप इसके अगर x1 और y1, x1 और y1 भी हो सकता है इस केस में, और अगर जैसे हमने रखा है उस केस में अगर इस चीज़ को हम कहें, इस एक्सिस को x1 कह दें और इस एक्सिस को x2 कह दें, तो फिर ये x1 ये आपके बेसिक एक्सिस हैं और उनके फिर कोई वैल्यूज आप x1 डैश y1 डैश इनकी वैल्यूज होंगी, आप इस्तेमाल कर सकते हो। इस वेक्टर को इस कोऑर्डिनेट्स की शक्ल में जाहिर करना कि ये वेक्टर इन दो कोऑर्डिनेट से बना है, इसके कंपोनेंट से वो ये होगा, ठीक है, उसको हम जाहिर करते हैं। तो एक वेक्टर पॉइंट इन स्पेस के लिए ईच एलिमेंट गिव्स द कोऑर्डिनेट्स अलोंग ईच एक्सिस, कि कितना साइज है, इस कंपोनेंट का क्या साइज है और इसका, अगर फर्स्ट को ये 3 है और ये 4 है, ठीक है, तो ये 3i4j है और एक कंपोनेंट 3 है जो कि x1 है, एक कंपोनेंट 4 है जो कि x2 है, और ये आपका वेक्टर है जिसको आप वर्टिकली लिखोगे। तो मैट्रिसेस इसी की एक्सटेंशन है जो हमने सीखा, 2-डे अरे ऑफ नंबर्स। तो वहां पर सिंगल इंडेक्स था, 1 डायमेंशनल था, अब इसके आपने 2 इंडेक्सेस ij इस्तेमाल करेंगे, ठीक है। मैट्रिसेस को भी हम यूज करेंगे बोल्ड फेस, जैसे वेक्टर के लिए किया था और x लिख के बोल्ड फेस किया था, इसी तरह यहां पर आपने मैट्रिक्स को कैपिटल लेटर लिखकर बोल्ड फेस में एक्सप्रेस करेंगे। और मैट्रिसेस के जो एलिमेंट्स हैं वहां क्या था, बोल्ड फेस में x और उसके एलिमेंट्स इटैलिक में नॉन बोल्ड फेस वैल्यूज x1 till xn, ये था। मैट्रिसेस के केस में मैट्रिक्स को a इन बोल्ड फेस और उसके कंपोनेंट्स इसी a का, कैपिटल A का ही लेट इटैलिक में नॉन बोल्ड फेस और उसका कंपोनेंट की लोकेशन इंडेक्स साथ लिखा जाएगा, जैसा कि फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम 1 1, फर्स्ट रो ही का सेकंड कॉलम 1 2, सेकंड रो का पहला कॉलम, सेकंड रो का सेकंड कॉलम। तो जो इंडेक्स हैं आपकी मैट्रिक्स के, अगेन ये जो डैश डैश हैं दे आर दिस, दे आर द ब्रैकेट्स। तो ए मैट्रिक्स इट्स अ 2 by 2 मैट्रिक्स और इसके ये एलिमेंट्स हैं इंडेक्स के साथ और ये उसका नाम है, ठीक। और यही बात इन जनरल यहाँ हम लोग 2 by 2 मैट्रिक्स से शो किया। इन जनरल आप इसको किसी भी मोस्ट जनरल फॉर्म जो हमेशा यूज करते रहे, आप एक मैट्रिक्स ऑफ साइज m by n को एक्सप्रेस करो। हम जब स्क्वायर मैट्रिक्स भी इसमें कवर हो जाएगी और रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स कि भाई इसकी ये साइज m है, रोज नंबर ऑफ रोज m है, नंबर ऑफ कॉलम्स n है, इट्स एन m by n मैट्रिक्स, मैट्रिक्स m by n है और इसके इंडेक्सेस की इधर से लेट से i के तौर पे हम एक्सप्रेस कर रहे होते हैं रो का और कॉलम का j से कर रहे होते हैं। तो ये जो फॉर्म है इसको हम कहेंगे कि अगर अब इसको इस शक्ल में लिखें तो हमने हमेशा देखा है कि इसको लिखने का मतलब होगा कि आप यहाँ ये मैट्रिक्स लेट्स a इन बोल्ड आपने लिख दिया इज इक्वल टू, और आपने यहाँ a इसी असूल पर शुरू किया 1 1 से, और अगर ये n है ये साइड तो इस पर चलते जाएंगे a1 2 और यही चलता जाएगा और आखिर में a1n हो जाएगा, ठीक है ना, a1n। सेकेंड रो में a21 से शुरू करेंगे, अब
ये चेंज हुआ पहली दफा। अब वो 2 कंटिन्यू रहेगा, A22, और फिर आखिर में ये A2N पे हो जाएगा। और यही चीज फिर चलती रहेगी नीचे। ये मेरा ब्रैकेट थोड़ा और एक्सटेंड कर दूं, यहाँ ये MSI तो AM1 पे चला जाएगा और बढ़ता रहेगा AM2, और N में ये M2, और आखिर में AMN पर आ जाएगा, AMN। तो लास्ट एलिमेंट अगर MN मैट्रिक्स है तो AMN होगा, पहला A11 होगा, और इनके ये इंडेक्सेस इस तरह होंगे। ये इसकी रोज हैं, आई इंडेक्स से शो हो रहा है पहला, और दूसरा यहाँ कोई जनरल जो कंपोनेंट है उसको आप कह सकते हो AIJ, ith रो एंड jth कॉलम AIJ। इनके दरमियान कॉमे इस्तेमाल हो रहे हैं ये यहाँ पर। ओके, ये है। अच्छा, अब इसके अंदर कई दफा आपको मेंशन करना होगा, ये हमने किसी हद तक नमपाई वालों ने भी ये चीज़ें शेयर की हैं और यूज़ की हैं, और ये मैथ से भी रिलेटेड है, और ये ज़रूरत पड़ती है आपको एल्गोरिथम में भी कहने के लिए और लैंग्वेज में इम्प्लीमेंट करने के लिए भी। तो अब यहाँ हमारी प्रैक्टिस उसी लाइंस पर है जो लैंग्वेजेस में जिस शक्ल में ये गया है, और मैथ्स में भी ऐसे ही था कि जब आप कोई एक पूरी रो को कहना चाहते हो, इसमें आप किसी रो पूरी को कहना चाहते हो तो कैसे कहोगे? अभी तो एक एलिमेंट को कहना है तो आप AIJ से कह देते हो। अगर आपने पूरी रो को कहना है तो आप ये कहोगे, ये यहाँ पे लिखिए ith रो। यहाँ पे जो ith रो है पूरी, ith रो, उसको कैसे कहा जाए? AI कॉलम। ये जैसे नमपाई में हमने ये रखा था कि दो आपके इंडेक्सेस इस तरह शो होते हैं, तो I का आपने यहाँ पर मेंशन कर दिया और J में एम्प्टी छोड़ दिया। इसका मतलब है J में पूरी रेंज। J मीन्स here J is all। अगर ये M/N का मैट्रिक्स था तो J is from 1 to N, ये एम्प्टी छोड़ने का मतलब है। तो AI और कॉलन और एम्प्टी मीन्स ith रो। अच्छा, फिर A, इसके यहाँ इंडेक्सेस में पहला पार्ट आपने मेंशन नहीं किया, ये इट मींस ऑल द रोज, एंड आपने J कॉलम को मेंशन किया। इसका मतलब Jth कॉलम में ऑल द एलिमेंट्स, ये कॉलम पूरे कॉलम को कहेगा। ये कॉलम के बारे में कहना या इस रो के बारे में कहना का ये तरीका है, AI कॉलन एम्प्टी, A एम्प्टी कॉलन J, ये Jth कॉलम इस तरह इस्तेमाल होगा। जो तो A की शेप जो है M है, M ये जो रोज की साइड है, अगर मैथमेटिक्स में कहते हैं तो इसको कई दफ़ा हाइट भी आप कह लेते हैं। जो नंबर ऑफ रोज हैं वो हाइट है, इस बॉक्स की हाइट है, तो हाइट M एंड विड्थ N विद रियल वैल्यूज, कंपोनेंट के दे आर ऑफ रियल वैल्यूज। तो आप इसको A इज एलिमेंट ऑफ। अच्छा, ये अब इसमें ये जो कन्वर्ट हो गया है, ये कन्वर्शन की इसमें हमें ये जहां पर अभी ये आ रहा है, इट इज R। अभी मैंने आपको बताया था कि R इज ए सेट ऑफ नंबर्स, तो हम इसको R से शो करते हैं। तो कोई भी चीज विच टेक्स फ्रॉम दिस सेट एंड हाउ मैनी और इन विच फॉर्म इट टेक्स ए नंबर, वो हम शो करें। तो अगर ये मैट्रिक्स है M/N, तो R से हम M into N एलिमेंट सिलेक्ट करके एनी फ्रॉम दिस रियल नंबर्स ले रहे हैं। तो यहाँ की जगह आप जहां भी है तो R लिखेंगे, RMN। रियल नंबर के सेट से आपने दो M into N कंपोनेंट्स को यूज किया है A मैट्रिक्स में। A इज एलिमेंट ऑफ दिस। जैसे वेक्टर का है, इसी तरह मैट्रिक्स का भी एलिमेंट का कॉन्सेप्ट वैसे ही है। ओके, तो अब वर्ड टेंसर, हमेशा हम वेक्टर पहले कहते हैं मगर टेंसर के लिए स्पेशल वर्ड लाते हैं। अक्सर वेक्टर 2 डायमेंशन तक जो चीज़ें हैं उनके लिए वेक्टर था। उस वेक्टर ही को हम एक्चुअली मल्टीपल डायमेंशंस पे लेके जाते हैं। फिर जो इवन पिछले भी उसमें हमें
the word tensor starts appearing, but it is actually the vector thing extending to more than 2 dimension. ठीक, अभी तक हम मैट्रिक्स पे गए थे, अब 3 डायमेंशनल मैट्रिक्स, 4 डायमेंशनल मैट्रिक्स, 5 डायमेंशनल मैट्रिक्स और n डायमेंशनल मैट्रिक्स. अब जब उनकी डीलिंग करनी है तो वी जनरली जनरलाइज दैट टू द नेम ऑफ टेंसर. तो यही है कि जब हमें एक अरे चाहिए विद मोर देन 2 एक्सेस तो फिर हम टेंसर कहेंगे. और लेट से ये मैंने एग्जांपल भी आपको कराई थी जब पाइथन के उसमें दिखा रहे थे कि अगर जैसे 3 कलर होते, एक पिक्सल पे 3 कलर हैं, तो एक तीसरी डायमेंशन आ गई. एक्चुअली देखें ये हुआ, ये था, ये आपका इमेज है, इसमें यहाँ पिक्सल है, इसे 2 डायमेंशनल थिंग. इसके अंदर अगर हर पिक्सल जो हम कहते हैं कंप्राइजेज ऑफ 3 कलर कंपोनेंट्स, रेड, ग्रीन और ब्लू. जब ये कलर्ड होता है तो ये 8 बिट ग्रे स्केल नहीं होता. जैसा कि हम जब ग्रे स्केल होता है हम कहते हैं एक बाइट है 8 बिट की हर पिक्सल. लेकिन जब ये कलर्ड होता है तो हम, जैसे मैंने आपको पहले भी बताया कि एवरी पिक्सल इज ईच पिक्सल इज कंप्राइजिंग ऑफ 3 बाइट्स ऑफ सेम 8 बिट. 8 बिट के 3 बाइट्स हैं. एक रेड के लिए 3 बाइट्स हैं, एक ग्रीन के लिए और एक ब्लू के लिए. हर एक के लिए 1 बाइट है. इस तरह अब ये 1 बाइट जो ग्रे स्केल में था 0 से 255, उसकी जगह हर एक कलर 0 to 255 के तौर पे होगा और वो उस कलर की इंटेंसिटी होगी. लाइक जैसे ग्रे स्केल था वो तो फिर ब्लैक में पूरी थी, इसमें रेड का पूरी रेंज, ग्रीन के लिए 0 to 255 के हाउ मच इज दैट रेड कलर, और उससे एक पिक्सल इनकी वैल्यूज के बेस पे उसका कलर डिफाइन हो जाता है हर पिक्सल का. तो अगर आप RGB कलर किसी इमेज को भी शामिल करें तो फिर यही मैट्रिक्स जो यहाँ 2 डायमेंशनल है ये 3 डायमेंशनल की हो जाएगी. इसकी 3rd डायमेंशन, इसमें हर पिक्सल वैल्यू, यहाँ पे हम क्या करेंगे, एक बार प्लस ओके. तो हम कह रहे हैं कि हर पिक्सल वैल्यू पर ये कलर का वेक्टर आ जाएगा, 3 कलर्स की वैल्यूज का वेक्टर. इसका मतलब है इसकी डेप्थ आप सोच लो 3 है. अब हर पिक्सल वैल्यू पर एक वेक्टर ऑफ 3 वैल्यूज डेप्थ में जा रहा है और इनके तादाद पिक्सल की ये 2 डायमेंशन में थी. तो इस तरह 3 डायमेंशनल और फिर यही बातें 4 डायमेंशन, 5 डायमेंशन एटसेट्रा कंटिन्यू रहेंगी. तो अगर इस तरह की सिचुएशंस हों तो फिर हम इसको टेंसर के असूलों पे डील करते हैं. और ये array of numbers arranged on a regular grid with variable number of axes. अच्छा, अब ये ग्रिड की बात इंपॉर्टेंट है जो अभी आपके असाइनमेंट में भी थी, और आप जब ज्यादा इमेजेस की तादाद की तो आप परेशान होना शुरू हो गए. टेंसर अलजेब्रा में हमने ये सीख लिया कि किस तरह एक ग्रिड यानी एक 2 डायमेंशनल तरीके से एनी डायमेंशनल चीज को एक्सप्रेस करना है. ये इसका मेन वो था जो मसला आपको इस प्रॉब्लम का भी था कि जब आपका पहले 1 डायमेंशन था हमने इस तरह लिख दिया. जब 1 डायमेंशन वेक्टर था तो हमने लिखा ए इज दिस और हमने इस तरह करके लिखा नमपाई में भी. अच्छा, जब ये 2 डायमेंशनल हुआ, मैट्रिक्स बना, तो हमने इस तरह लिख दिया. हमने वही असूल इस्तेमाल किया कि ये वेक्टर पहले लिखेंगे फिर दूसरा वेक्टर लिखेंगे. वेक्टर ऑफ वेक्टर्स है तो हमने उसको इस तरह लिखा और फिर ये यहाँ का एक शुरू का वेक्टर ऐड किया और एक एंड का वेक्टर ऐड किया और उनके बाद कॉमे डाले. ये हमने असल में इस टेंसर की चीज़ को यूज़ किया नमपाई में. तो ये 2 डायमेंशनल हो गया. अब मसला आया था 3 डायमेंशन. डायग्राम्स हम इस तरह शो करते हैं, लेकिन अभी आपने अपने इस कंप्यूटेशन में एक्सप्रेस करना है, इन वैल्यूज को लिखना है, इस्तेमाल करना है प्रैक्टिकली. तो ये ग्रिड बेस्ड अप्रोच, जिस तरह के मैप में आप एनी नंबर ऑफ बिट्स की डायमेंशन इस्तेमाल कर लेते थे, हमने पूरे हाइपरक्यूब को फ्लैट के मैप में शो किया, मल्टी डायमेंशनल, वही यहाँ इस्तेमाल हो रहा है कि ये 2 डायमेंशनल चीज अब इस तरफ एक्सपेंड होगी. यही 2 डायमेंशनल, यही पहले इमेज था, यही इमेज अब बार बार 2 डायमेंशनल चीज को आप, ये आपकी अब 3rd डायमेंशन है.
इस डायमेंशन में आप ये पूरे पूरे 2 डायमेंशनल चीजें रिपीट करके लिख रहे हैं। तो अगर ये आपकी एक वीडियो है जिसमें 4 इमेजेस हैं, उसका एक्सप्रेस करना, उसका शो करना, उसका यूज करना, उसकी इंडेक्सिंग करना, वो इस असूल पर होगी जो हमने सीखी थी। तो ये ग्रिड की शक्ल में आप एक्सप्रेस कर रहे हैं 3 को। फिर 4 को कैसे करेंगे? 4 को ये पूरी चीज अगेन, ये जब आपने यहाँ रिपीट किया तो इसके समझो आप यहाँ एक ब्रैकेट ऐड हो गया, और आपके कॉमे एक यहाँ पे भी थे, ये आ गए, ये खत्म हुआ, फिर ये कॉमा आया, ये कॉमा आया, फिर ये आखिर में नहीं आता, ये आ गए। अब अगर आप इसको 4 डायमेंशन पे ले जा रहे हैं वहां पर, तो आप फिर ये पूरी चीज इस शक्ल में जो ऊपर की थी वो अब रिपीट करेंगे। अब आपकी एक और ये वाला चीज, ये 4th डायमेंशन के लिए आई, और ये अब सारा एक ब्रैकेट में आ गया, यहाँ कॉमा आया, फिर ये सारा, ये एक और सेकंड ब्रैकेट, पहला ब्रैकेट ये था, इधर आया, इधर आया, और ये अब 4th डायमेंशन में आपने ग्रिड लेवल पे शो कर दिया। यही आप वहां नंपाई और अपने प्रॉब्लम सॉल्विंग करेंगे, और यही आगे जारी रहेगा इस मैथमेटिकल शक्ल में इसको कहने के लिए। ओके ओके, तो आंसर विद दिस फोर फेज ए वो वही रहेगा, और एलिमेंट ऑफ आई जे के और एक्सेट्रा यूज होंगे। तो हम ए आई जे के तौर पे इंडेक्सिंग ऑफ एलिमेंट्स उसी तरह इटैलिक और उसमें करके इस्तेमाल करेंगे जैसे हमने पीछे सीखा। ओके ओके, वी कैन वी हैव टाइम। अच्छा, ये पिक्टोरियली अभी मैंने जो सारी बात आपको समझाई है उसको पिक्टोरियली भी हमने यहाँ इस स्लाइड में दिखाया हुआ है। वही कॉन्सेप्ट इफ यू रिकॉल कि हम जब हाइपरक्यूब के लिए कह रहे थे 0 डायमेंशनल हाइपरक्यूब, 1 डायमेंशनल हाइपरक्यूब, 2 डायमेंशनल हाइपरक्यूब, समथिंग लाइक दैट यहाँ भी वही मल्टी डायमेंशनल के लिए कॉन्सेप्ट है। 0 डायमेंशनल टेंसर इज ए स्केलर, जो ये एक नंबर है। 1 डायमेंशनल टेंसर, अब टेंसर का वर्ड इस्तेमाल कर रहे हैं, जनरलाइज हो गया, ये इस एक सिंगल उसको एक और ये था 0 डायमेंशन, इसको इस डायमेंशन में आपने एक्सपेंड किया, इसको रिपीट किया इस डायमेंशन में, तो ये 1 डायमेंशनल टेंसर हो गया, अरे या वेक्टर ऑफ 1 डायमेंशन। फिर आपने इस 1 डायमेंशन को, वहां हम हाइपरक्यूब में ये एक बनाते थे, ये एक बनाते थे, उसको कनेक्ट करते थे। यहां इस 1 डायमेंशन वेक्टर को आपने इस डायमेंशन में रिपीट किया, कनेक्ट करने के बाद रिपीट किया, यानी ये 1 डायमेंशन वाले आपने बहुत सारे लिखे, इस डायमेंशन में रिपीट किए, तो ये आपका 2 डायमेंशन टेंसर बन गया, मैट्रिक्स। अब ये 2 डायमेंशन का जो था आपका वो ये था, और इसको आपने एक और 3rd डायमेंशन में इस तरह पीछे चलते गए रिपीट किया। अब इस मैट्रिक्स को रिपीट किया एक और इस डायमेंशन में, ये आपकी 3rd डायमेंशन है, तो ये 3D टेंसर की शक्ल है। अब इंटरेस्टिंग, अब वो वाला सवाल शुरू हो जाएगा, यार 4 डायमेंशन क्या है, 5th डायमेंशन क्या है? सेम कॉन्सेप्ट हाइपरक्यूब में भी सेम कॉन्सेप्ट रिपीट। ये पूरी 3 डायमेंशन का जो बॉक्स है, इसको जैसे हम यहाँ कर रहे थे अभी, इस पूरे को आपने एक और डायमेंशन में, पूरे इस बॉक्स को जो 3 डायमेंशन बॉक्स था, ये यहाँ एक है, ये इसको आपने इस वाली, ये जो 1 डायमेंशन वाली थी उसमें रिपीट किया, ये साइकिल दोबारा शुरू हो गया, पूरा बॉक्स यहाँ रिपीट हुआ, ये 4 डायमेंशन टेंसर हो गया। फिर आपने इस पूरे बॉक्सेस की जो लीनियर चीज थी, ये एक, इसको लाइक अबव इस डायमेंशन में रिपीट किया। अब इसमें हर जगह एक बॉक्स है, वहां एक एलिमेंट था, एक स्केलर था, और ये बन गया। और फिर इसी तरह ये 5 डायमेंशन वाली जो चीज है, इसको आपने एक और 3rd डायमेंशन में ये पूरी चीज को रिपीट किया 6 डायमेंशन। ये इसकी फिजिकल कॉन्सेप्चुअल एक्सप्रेशन ऑफ आपके ये है मल्टी डायमेंशनल टेंसर्स की। ये उसके आपने वो किया है, हम इसको ये एक है फाइबर ऑफ दिस, लेट्स सी 3 डायमेंशन चीज ये आपकी है, इसको एज ए फाइबर ब्रेक कैसे करेंगे, और
एक डायमेंशन में कैसे ब्रेक करेंगे। तो आप ये देखें, जो बॉक्स था, ये आपको, आपने इसको इस डायमेंशन में ब्रेक कर दिया है। तो आप देखेंगे कि इसके अंदर ये मोड 1 कहलाएगा, और ये कॉलम वाइज फाइबर आपने बनाए हैं, और इसके एक्सप्रेशन में आपके आई जो है वो पूरा इस्तेमाल हो रहा है, ऑल। लेकिन अब आपके जे के पर ये इनको एक्सप्रेस करेंगे जे के की शक्ल में कि कौन सा फाइबर। ठीक, तो ये देखिए इसके एक्सप्रेशन एक्स, पहला ऑल, कॉलन और जे के। तो इस पर्टिकुलर जे के लोकेशन पे जो फाइबर है वो पूरे एक्स के साथ इस्तेमाल हो, तो इसको आई की जगह ऑल और जे और के की वैल्यू दे दी, तो आप फाइबर शो कर दोगे। इसी तरह मोड 2 में आपने, इस मोड 2 में आपने ब्रेक किधर किया हुआ है, आपने इस आई आप आइडेंटिफाई कर रहे हो, के आप आइडेंटिफाई कर रहे हो कौन सा, लेकिन जे आपका कंटिन्यूस पूरा है। तो जे की जगह आप ऑल लिखोगे और आई और के मेंशन करोगे, और इसी तरह इसके इसमें आई और जे मेंशन करोगे और के ऑल, के में सारा है। इस तरह ये 3 मोड है। यही चीज आप अगर प्लेन की शक्ल में कहोगे तो हॉरिजॉन्टल स्लाइसिंग जब करेंगे आप, ये आपने किए, तो इसमें आप आई भी स्पेसिफाई करेंगे कौन सा किस आई में है। ठीक है, जे आप, अब ये प्लेन वाले लेवल, प्लेन आपका जे और के में है, आप उस प्लेन की लोकेशन आई से बताएंगे, तो आई मेंशन करेंगे और आप जे के का प्लेन यूज करेंगे। इसमें जे मेंशन करेंगे और आई के का प्लेन इस्तेमाल करेंगे, और इसमें तो इस तरह प्लेन में आपको एक इंडेक्स से प्लेन बता देंगे, यहाँ 2 इंडेक्स से फाइबर बता देंगे। और ये वो चीज है जो अभी मैंने आपको बताई कि 1 डायमेंशनल टेंसर को लिखा आपने वैल्यूज से, इसको 2 डायमेंशन में ग्रिड पे एक्सप्रेस करने का ये तरीका था, और इसको जब 3 डायमेंशन में की वाली चीज को लिखना था तो मैंने आपको बताया कि आप ये 2 डायमेंशन वाला एक लिखें और उसके बाद इसी फ्लैट लेवल पर ही 2 डायमेंशन का दूसरा लिखें। तो यह आपके 3 डायमेंशन वाली चीज का फ्लैट लेवल पे ग्रिड में एक्सप्रेस करने का तरीका है, जैसे के मैप का होता था इसी तरह यहाँ पर है, जैसे हाइपरक्यूब का होता था इसी तरह यहाँ, जिस तरह आपने नमपाई में किया उसी तरह यहाँ। तो ये मैथमेटिक्स में भी हम यही नोटेशन इस्तेमाल कर रहे हैं। and we will stop here. Time is up. Okay, any question you have till up till now? Okay, we continue in our next class of deep learning, this coverage of mathematics, linear algebra for deep learning. Okay, Allah Hafiz.